The soundtrack for the stock market has been changing quite a bit recently. From the bulls playing the heartbreak hotel songs to the bears taking out the Nagada in anticipation that the market is going to fall. And the tune has changed once again. So what's the playlist for the new Samvat? That's the question. So why not ask an investor who never misses a note? With me today is Vijay Kedia, noted investor, a musical investor who needs absolutely no introduction. Vijay bhai, great to have you with us here. Thank you very much for your time. Thank you, dear. Thank you for having me. सबसे पहले हम सब की तरफ से CNBC फैमिली की तरफ से आपको, आपके परिवार को, आपके एम्प्लॉइज को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you, प्रशांत। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। Usually we are the ones who invite Vijay bhai to our studios, but he's been generous enough to open his home and allow all of us here. So we're very pleased to be here. Now home has become beautiful because you have turned it into a studio. We've done very little. Vijay bhai, before I start, I want to, I promised viewers it's going to be musical, next 30 minutes. Let's begin with something which is close to your heart, a prayer or a chant or something which really kind of, inspires you every day. Anything comes to your mind? You see, basically, if you say about religious and spiritualism, so I follow spiritualism. Of course, I'm religious person, but not that I'm going to temple every day and all. But I believe in spiritualism. And while talking to you, I remember one, you can say song or bhajan or whatever it is, that which comes to my mind quite often, that हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. And there is a quote of also mine, very similar to this, that KYS, know yourself first. Correct. So win yourself first. Correct. That's the first battle, but the most important one. Yes, exactly. Which one needs to. Yeah. Before we talk about the Samvat and what lies ahead, let's actually recap what has been the biggest learning for you from the Samvat which has gone past. I mean, the one behind us now. I think there are so many learnings, Prashant, but one biggest learning or observation or whatever you call it, of course, we learn by observing things. What I have understood in this market, and this I had made a quote also for this, that influence of FIIs in this market is receding. Now it is no more important issue because FIs is selling, left, right, and center. But retail investors are taking over the market. So their influence is no more there in this market. This is the biggest learning. Earlier every day we used to talk about FIs. Their 1 rupee of selling used to have an impact of 80 rupees, for example. So that is the biggest learning, that don't be dependent and don't look what FIs are doing. So that is the, I think, biggest comfort. आपके जैसे दिग्गज इन्वेस्टर जो पुराने मार्केट में हैं, उनसे भी मैं कई बार सुन चुका हूँ, वो बोलते हैं जो मर्जी आ जाए मार्केट घटता ही नहीं. Yeah. मतलब हमने I think we've seen 7,000 crores of selling daily, but the market has been very resilient, right? And that is largely due to the local buying which has come in. 1.5 लाख करोड़ का माल बेचा उन्होंने. 1.5 लाख करोड़ सुन के ऐसे लगता था उनका 500 करोड़ 50,000 करोड़ का इम्पैक्ट करता था मार्केट को. उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में 1.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया वहाँ पे, और एफआई ने ले लिया उनका. सू पड़ा साफ. तो एफआई की इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गई है, करेक्ट? तो इस पे कुछ सुनाइए. आपने कुछ लिखा है जो कि आप जो सॉन्ग्स जो हैं वो दे से पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, बट आई थिंक सॉन्ग्स आर आल्सो इक्वली पावरफुल इफ नॉट मोर. कुछ सुनाइए आपने जो लिखा है. हाँ, मैंने एक गाना लिखा है. इस गाने का अंतरा ये है जो इसी बात को बताता है इसको, और कि एफआई के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-2-11. फोकट में ये माल फूंकते इनके बाप का क्या है जाता, जो भी इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता, मैं तो मर गया मम्मा, मैं तो मर गया मम्मा. आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग. बिल्कुल पते की बात है और एक बहुत ही म्यूजिकल तरह से. जो SIP का फ्लो है विजय भाई, वो अब $2 बिलियन महीने का $2 बिलियन आ रहा है. तो आपके हिसाब से ये और बढ़ेगा? यहाँ से हम कहाँ पे हैं? मतलब एक्सट्रीम पे हैं, पीक पे हैं, कि अभी शुरुआत है? किधर पीक पे भाई? 16,000 करोड़ रुपया महीने का आप आता है, 30 दिन महीने में होते हैं. 500 करोड़ रुपया डेली का आता है मोटा मोटी. आप देखो शेयर बाजार के समंदर में 500 करोड़ रुपया ड्रॉप भी नहीं है. वो हम लोगों ने, चूंकि ये नई शुरुआत हुई है, ठीक है, साल 1.5 साल पहले या 2-3 साल पहले 7-8 हज़ार करोड़ ही होगा, अभी ये 16,000 करोड़ है. मेरे को ऐसे लगता है कि ये इतना बड़ा एक फैशन और ट्रेंड, और ये इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन हो रहा है इंडियन कैपिटल मार्केट में. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 16,000 करोड़ रुपए डेली का आएगा. इसमें 5 साल लगे, 7 साल लगे, ये मेरे को नहीं मालूम है.
500 करोड़ रुपया क्या है यार, कुछ भी नहीं है 500 करोड़ रुपया, अभी तो ये शुरुआत है भाई ये। लेकिन जो चेंज हुआ है कोविड की वजह से हुआ है। पीपल स्टेड एट होम, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और पैसा बना लोगों का। और एक बात ये भी बोलते हैं लोग कि करेक्शन नहीं आया है कोई बड़ा, जो धक्का लगता है और आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने पैसा बनाया है, काफ़ी आपकी मेहनत और स्किल है, बट बाजार ने भी साथ दिया है, तो एक वो धक्का नहीं लगा है, तो वो यू थिंक उससे फ़र्क पड़ेगा? जब भी वो धक्का तो आना है, वो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये सिप वाला जो ये मामला आ रहा है ये कोई कोविड के कारण आया है। ऑफ कोर्स जब एक दिशा में ट्रेन चलती है, एक दिशा में कोई चीज़ अगर चलती है एक ट्रेंड के अंदर में, तो हर चीज़ उसको सहायता करती है और आगे बढ़ने में, ठीक है। क्योंकि कोविड के बिना भी तो 10,000 12,000 करोड़ का मार्केट अपना आता था, 10,000 का फिगर कोविड के पहले भी आता था। तो ये ऐसा नहीं कि खाली कोविड के कारण बढ़ा, ये बड़ा मेरे ख्याल से डेमोग्राफी के कारण। ये जो डेमोग्राफी की जो बातें जो हमारे इकोनॉमिस्ट करते हैं और सब जो फॉरेन वाले करते हैं और इंडियन और म्यूचुअल फंड के मैनेजर करते हैं कि क्या 3.5 करोड़ अकाउंट है आज के दिन भी, जो जैसा सुनते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। और ये जो यूथ जो आ रहा है इनको, ये इनकी जो एस्पिरेशन है, जो हम बातें करते हैं एस्पिरेशन, आप बोलते हो 2,000-2,500 करोड़ का जब पर कैपिटा वो जीडीपी इनकम अगर क्रॉस करती है तो उसके बाद में वाइट गुड्स की सेल बढ़ जाती है, कंज्यूमर की सेल बढ़ जाती है। यार भाई, शेयर बाजार के सिप से बड़ा म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टर से बड़ा वाइट गुड्स और क्या हो सकता है, आप मेरे को बताओ। इससे बड़ा ट्रेंड क्या हो सकता है कि पहले आप अपनी सुरक्षा को रखोगे भाई, पहले अपना सेविंग्स करोगे। हमारे तो इंडियन इकोनॉमी पूरी हजारों 10,000 50,000 सालों से सेविंग्स के ऊपर भी टिकी हुई है। तो ये जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इतने आ रहे हैं, इतनी स्कीमें आ रही हैं, इतने अच्छे अच्छे फंड मैनेजर आ रहे हैं, इतना आप लोग का टीवी चैनल सब इसको जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हो, इन लोग एक्सपोज इन द सेंस अच्छी वे में जो बता रहे हो, इससे लोगों में एक ट्रेंड आ रहा है कि हाँ भाई। और ये हर बार ये तो इस बोल कर मेरे को नहीं लगता कोविड ने एक सहायता दी होगी, नहीं होता तो भी ये होना था। तो ये एक कारवां है, स्पेस पे ना होता बट होता, मतलब वो ट्रेंड ऑफ कोर्स होता, वो कुछ नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आने के साथ सब पैसा कमाते ही हैं, यू नो। तो इस बोलकर इसमें रिशफल भी होते रहता है, वो आते भी रहते हैं, जाते रहते हैं। तो एक एसआईपी मुझे याद है, आपने बड़ा मजेदार एक लिखा था, कुछ 2-3 लाइन सुना दीजिए। एसआईपी जो इन्फ्लो आ रहा है। हाँ, सिप पे मैंने गाना लिखा था और वो ये था, सिप सिप करके मैंने कितनी ये पूंजी जुटाई, हाथ लगी पूंजी तो घर में भी खुशहाली छाई, खुशियाँ हाथ आई तो चेंज हुआ मेरा पूरा जीवन, टूटा ट्रेडिंग का ऐसा भरम अब ना करूं। दोनों बातें, ट्रेडिंग का भरम भी टूटा और एसआईपी, दोनों चीजें। क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग नए नए आते हैं ना, उनको सिप का तो लोगों को कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है भाई। उनको लगता है कि ये बूंद बूंद से घड़ा भरने का नहीं है, उनको घड़े से बूंद बूंद भरने का है। उनको प्रॉब्लम ही है यहाँ पे, वो घड़ा लाकर बूंद उठाने की चेष्टा करते हैं। Correct. सिप तुमको बोलता है तू बूंद बूंद से पर डाल और तेरा घड़ा भरेगा। तो वो घड़े से उनको बूंद उठानी है, तो क्या करेंगे, वो आगे ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर ऑप्शन की मैं बातें कर रहा हूँ। वो F&O आप करेंगे, तो F&O अगर करोगे तो आपका यही होगा कि आप 2 में कमाओगे, तीसरे के अंदर आउट हो जाओगे यहाँ पर। इसी बोलकर सेबी बोलती है कि 90% लोग पैसा खोते हैं। मैं सोचता हूँ 99% पैसा खोते हैं, खाली ब्रोकर कमाते हैं। और या जो आप जो चार्जेस देते हो, सेबी चार्ज, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सर्विस टैक्स, ब्रोकरेज वक्त, ये सब वो सब हुए। लेकिन जो मार्केट में वॉल्यूम बढ़ा है वो ऑप्शंस की वजह से, जो कुछ फिगर्स हैं, मतलब बिल्कुल अस्टाउंडिंग फिगर्स हैं। ऑप्शंस मार्केट जो है वो मेरे ख्याल से 100x है फ्यूचर मार्केट के। और ऑफ कोर्स कैश तो कहीं नहीं है, मतलब उसके इनके मुकाबले। तो जो कल्चर है वो एक तरह से वहाँ पे भी जा रहा है, तो वो ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। अभी कल्चर बट इट्स गोइंग ऑन इन रॉन्ग वे ना। आई डोंट नो हाउ मेनी स्क्रिप्ट्स आर देयर इन F&O segments, maybe 200 300, I don't remember how many scripts are there. So what volume you are talking about, that volumes are created only in that F&O scripts. Correct. No? That is not getting created in mid cap and small cap. Correct. They are still illiquid. Correct. You go to sell 5,000 shares in any small cap, it will be 20% down circuit. Correct. You go to buy, it will be 20% up circuit. So whom does it benefiting? ये बेनिफिट तो कोई किसको हो रहा है, ये समझने वाली बात है ना। आप ब्रोकर्स को ही हो रहा है, या जो उनके इंटरमीडिएटरीज है जो उनको हो रहा है। इससे मार्केट को क्या वॉल्यूम हो रहा है, इसको मार्केट को क्या फर्क। आप बोलते हैं लिक्विडिटी क्रिएट होती है, अरे वो शेयर्स ऑलरेडी लिक्विड है यार। तू रिलायंस के अंदर में फ्यूचर में करके लिक्विडिटी क्रिएट करोगे क्या? आपको क्या एक दिन में 50 लाख शेयर लेने बेचने हैं क्या रिलायंस के अंदर में? तो ये बड़ा मिथ है जो लोग बोलते हैं लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। मेरे ख्याल से मिथ है। और लिक्विडिटी, यू आर क्रिएटिंग लिक्विडिटी एट व्हाट कॉस्ट, दैट इज हैज टू बी अंडरस्टूड बाय।
तुम 4 आदमी को मार कर खुद अगर शहीद हो रहे हो इन द सेंस को अपने आप को समझा रहे हो, तो उसका क्या वैल्यू हो गया भाई? इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी। ब्रेक के बाद आते हैं, बातें जारी रखते हैं। लीजिए एक ब्रेक, सी ऑन द अदर साइड।